Hello everyone. Today I'm going to deal with the nursing management subject. The topic is the evaluation. So evaluation, how we can explain about the evaluation? Evaluation can be introduced by the one of the particular aspect of the things, and evaluation is introduced by the one of the author, and introduction that evaluation is a systematic determination of a subject's merit, worth, and significance using the criteria governed by a set of standards. So first introduction in that evaluation is a systematic and continuous process which we can assess the individual according to his merit, according to his worth and significance, and we have to use some of the criteria and which is made by set of standard, and we can assess and we can evaluate the person, their goals and aim of the particular procedure. So this is known as evaluation. Evaluation, it helps in the decision making. It is one of the aspect जहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डेवलप किया जाता है. जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये जो evaluation होता है ये हेल्प करता है. It is very helpful to make the decision on different aspect of the procedures or any particular goals and aim which is made by the individual. Then purpose of the evaluation is to gaining the insight into the prior and existing initiative, is to enable reflection and assist in the identification of the future change. So one of the purpose of the evaluation, it gain the insight that into the prior or existing initiative which reflect and assist the identification of the future change. Any future changes can be implemented when the person should have the any reflection, and he is assisting to identify some of the objective and inferences to reach on the goal, and this is one of the evaluation. So here definition of the evaluation, it is a systematic application of the scientific method to assess design, implementation, improvement or outcome of a program. So evaluation क्या होता है? evaluation एक प्रकार से एक scientific method होता है जो किसी भी structure की design को develop करने, उसको implement करने के लिए और quality को improvement करने के लिए जो उस प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट आता है उस आउटपुट के आधार पर या आउटकम के आधार पर हम उसको evaluation डेवलप करते हैं. तो evaluation के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जो हमारे किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन को फुलफिल करता है, प्लान करता है और उसको इंटरवेन करके इम्प्लीमेंट करता है, किसी भी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है, विच विल शो द आउटकम result of the particular program. So this is one of the definition. It is a resource intensive process requiring resources such as evaluate, expertise, labor, time, and a sizable budget. ये एक प्रकार से रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होता है. रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस का मतलब होता है the person is having the insight in their minds, how he is working on the particular aspect of the things so that he can develop the resources planning. He can develop as a resource planning so that he can develop evaluate the expertise, labor, time in sizable budget. According to the budget के हिसाब से, according to the time के हिसाब से, according to the man power के हिसाब से जो पर्सन होता है वो किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन को evaluate कर सकता है. It is known as resource intensive process. So next we'll see the meaning. Here we can define the meaning of the particular evaluation. Evaluation, one of the purpose of the evaluation is to determine outcome criteria, how care of patient might be improved. हम इस evaluation से जो outcome criteria हैं उनको develop करके implement करके हम अपनी patient care को कैसे improve कर सकते हैं, ये helpful होता है. It is a very helpful criteria to determine the outcome criteria so that we can provide the better of quality care to the patient. It should be improved. So that evaluation is done for the purpose of the improvement by identifying specific areas that need change for the better. किसी भी betterment के लिए changes बदलाव बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले बदलाव के लिए हम क्या करते हैं?
जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं। यदि कोई भी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर कोई भी कमी है या वीकनेस है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद सबसे पहले कम करेंगे, वीकनेस को कम करेंगे, जो पॉजिटिवनेस है उसको ज्यादा डेवलप करेंगे, जिससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ केयर जो होती है, हमारा जो चेंजेस होता है किसी भी चीज को बेटर करने के लिए हम उसको इम्प्रूव करेंगे बाय द एवेल्युएशन। एवेल्युएशन से ये पता लगता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो थिंग्स होती हैं। यदि नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नेगेटिविटी के कारण क्या है। उन कारणों को दूर करने के लिए, हम अच्छा करने के लिए हम उसको इम्प्रूव करें। सो दिस इज वन ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। द टर्म इवैल्यूएशन डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो फ्रेंच वर्ड से इसको डेराइव किया गया है, जिसका नाम है वैल्यूअर, व्हिच मींस टू बी बर्थ। मतलब एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को हम बर्थ ही कैसे समझ और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू हम जो उसके अंदर है गेन कर रहा है, या किसी को लर्निंग स्टेज के अंदर है या टीचिंग स्टेज के अंदर है, हाउ ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, so that we can identify by the evaluation. So thus evaluation is a process of judging value, birth of the individual, achievement और characteristics. evaluation एक प्रकार से प्रोसेस होता है जो किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यू को जज करता है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अचीवमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसकी वर्थ को आइडेंटिफाई करता है। दिस इज वन ऑफ द इवैल्यूएशन। सो नेक्स्ट विल सी द पर्पसेस ऑफ द इवैल्यूएशन। पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन, ये हमारी किसी भी जजमेंट के द्वारा, हम जजमेंट फॉर्मुलेट करते हैं, उसके द्वारा हमारी किसी भी प्रोग्राम की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम बाय फॉर्मुलेटिंग ए जजमेंट। जजमेंट डेवलप करने के बाद हम किसी भी प्रोग्राम की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। सो देयर आर टू फंक्शंस कंसीडर इन द इवैल्यूएशन पर्पस। दो प्रकार से फंक्शन है इसके, पर्पसफुली हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फर्स्ट इज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सेकंड वन इज अ समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है बच्चों? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस की इंफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है या किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम किसी चीज को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उस इम्प्रूवमेंट के बिहाफ पर जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस। उसके बारे में जानकारी देता है हमें कि हम किसी भी प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा पता चलता है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या क्वालिटी या किसी भी प्रोसेस की शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को चेक करने के लिए उस प्रोडक्ट की और उस प्रोसेस की क्वालिटी का हमें पता लगता है बाय द समेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा। सो दीज आर द टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखने के लिए उसकी जो जानकारी हमें मिलती है उसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस। हियर वी कैन सी द इवैल्यूएशन प्रोसेस। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स। इसको थ्री अप्रोच जो होती है वो यूज होती है। फर्स्ट जो अप्रोच है आपकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोसेस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आउटकम। सो नंबर वन हम देखते हैं बच्चों कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर होता है, प्रोसेस होता है। हम पहले ही हम इस चीज को पढ़ चुके हैं क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल के अंदर। देयर आर थ्री प्रोसेस, फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज द प्रोसेस एंड थर्ड वन इज द आउटकम।
स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने बताया था स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल के अंदर आपका मनी ले लीजिए, मैन पावर ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, हमारे पास ये तीनों चीजें होंगी अवेलेबल, तो हम प्रोसेस को प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। यदि ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो हमारे प्रोसेस को हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डेवलप द प्लानिंग प्रोसेस विदाउट एनी स्ट्रक्चर। वी शुड हैव द स्ट्रक्चर टू प्लान द प्रोसेस so that outcome should be achievable। जो हमने जो गोल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, it should be achievable because there are two process, structure process and process, they are become helpful to overcome the outcome in a positive way। So directed towards the structure का मतलब होता है it concern with the physical facilities। हमारे पास physical facility होनी चाहिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए प्रॉपर, उसको स्मूथली रन करने के लिए स्टाफिंग होना चाहिए प्रॉपर। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैसिलिटी, जो दूसरे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फैसिलिटी के अंदर, वो हमारे पास होने चाहिए, जिसके अंदर हम क्वालिटी ऑफ केयर को हम इफेक्टिवली प्रोवाइड करा सकते हैं। विदाउट दीज we cannot provide a quality of care to the person। Second is directed towards the process। So directed towards the process का मतलब होता है कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो प्रोवाइडर होता है वो एक्टिविटीज डेवलप करता है, प्लान करता है। सबसे पहले उस चीज को किस तरह करता है, वो असेस करता है, प्रॉब्लम को असेस करता है। he has to find out the particular aspect of the things by the assessment, by planning, and he do the planning and he will develop the intervention so that he can effectively he can develop the implement the nursing care to the patient। Without any assessment, without any planning, we cannot develop the nursing care implementation, and we cannot develop the interventions and goal of the particular person। So it concerned with the activity of the provider। जो person एक्टिविटी करने जा रहा है, सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं। जो भी हम किसी प्रोसीजर, जब हम किसी को प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर के दौरान हमारे पास सारे आर्टिकल्स हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। विदाउट दीज वी कैन नॉट डेवलप द प्रोसेस। सो प्रोसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस द प्रॉब्लम, what are the requirements of the interventions, and what are the planning blueprint हम उसके लिए प्लान करते हैं, so that we can develop the implementation program to provide the betterment of nursing care to the patient। So third is the directed towards the outcome। ये डिपेंड करता है पेशेंट को, जो हमने किसी भी नर्सिंग प्रोसेस को दिया है, मतलब प्रोसेस को हमने फॉर्मुलेट किया है, उस फॉर्मुलेट के अगेंस्ट में जो आउटकम आते हैं, हमारे जो भी हमने जो गोल बनाए, हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए, उनका आउटकम किस तरह आ रहा है, ये पॉजिटिव वे में आ रहा है। ठीक है, what all aspect is achieving our goals। जो हमारे एस्पेक्ट हमने जो बनाए वो हमारे गोलों को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जो एक मेथड के द्वारा क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग ऑडिट्स। नर्सिंग ऑडिट्स के द्वारा ये पता चलता है कि जो हमने असेसमेंट किया है, प्लानिंग किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसके आधार पे पेशेंट को कितना बेनिफिट्स हुआ है उस नर्सिंग केयर से, सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर द बोथ पर्सन। बोथ पर्सन का मतलब होता है स्टाफ नर्स जो नर्सिंग केयर दे रही है, और दूसरा होता है जो केयर ले रहा है, यानी कि पेशेंट। सो किससे पता चलता है, वो नर्सिंग ऑडिट एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन आर प्राइमरली कंसर्न विद द क्वालिटी एश्योरेंस। ऑलरेडी क्वालिटी एश्योरेंस को ये डेवलप करता है। So next we'll see the components of the evaluation। So here we can see the some of the components of the evaluation के अंदर basic components क्या हैं। So basic components के अंदर first component है आपका, so it is identify parameters of the subjects of appraisal। जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को हमें अप्रेजल करना है, अप्रेज्ड करना है। इफ यू वांट टू अप्रेज द सब्जेक्ट for the particular responsibility and annually
we are promoting the client, we should have the some of the parameters, and we can develop the parameters, and so that we can identify the parameters, so that we can implement to the particular employee or any person. Second is developing criteria specific to the topic within the parameters. जो हमने क्राइटेरिया जो हमने पैरामीटर्स देखे हैं, चेकलिस्ट हमने देखी है, हमने जो टूल्स बनाए हैं, उन टूल्स के अंदर हम एक क्राइटेरिया डेवलप करते हैं जो किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है. जैसे आपने देखा होगा रिसर्च के अंदर हम किसी भी टॉपिक के अंदर टूल बनाते हैं, तो टूल के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है. हम कैसे किसी भी पर्सन को कैसे इवेलुएट करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है. सो दीज आर द सम ऑफ द पैरामीटर्स. उन पैरामीटर्स के द्वारा हम एज्यूम करते हैं, वी आर एज्यूमिंग द पर्सन जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं, उस हाइपोथेसिस के बिहाफ पे उन पैरामीटर्स के हिसाब पर हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं जो हमने क्राइटेरिया. थर्ड जो है डेटा गैदरिंग. हम डेटा को गैदर करके हम उसको पर्सन को इवेलुएट कर सकते हैं. विदाउट डेटा गैदरिंग वी कैन नॉट डेवलप द evaluation process. The data is very helpful to evaluate the person. If we don't have the data, we cannot assess the person's quality. So that next जो है measuring data against the criteria. जो criteria हमने develop किया है उसके against में हम data को measure करते हैं. We have to identify some of the criteria by unknown factors, so that we can develop a measuring data. measuring data के अंदर skills होती हैं, उन different skills को use करके हम criteria को assess कर सकते हैं. next जो है employing result of the assessment for improvement of the process. जो process होता है इसको improvement के लिए हम assessment करते हैं. behavior और activity किसी person की status या किसी process को या उसकी activity को evaluate करने के लिए हमें असेसमेंट के रिजल्ट को इम्प्लॉय करना, फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस तरह का हम उसको रैंकिंग कर. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इवैल्यूएशन. हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ द इवैल्यूएशन इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर इवैल्यूएशन को किस तरह अप्लाई किया जाता है. हाउ वी कैन अप्लाई द नर्सिंग मैनेजमेंट in the evaluation process. So first is parameters are exact dimension of fixed limit that clearly define area of evaluation. That parameters establish frame of reference. ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एस्टेब्लिश करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोन और अननोन पर्सन. नोन और अननोन पर्सन क्या होते हैं, जो नोन हम उसको जानते हैं, अननोन पर्सन जिनको हम नहीं जानते. अननोन का मतलब होता है कि जैसे कि पर्टिकुलर केस सीट है या उनका केस रिकॉर्ड है या ईयरली वाइज उसका जो है प्रोग्रेस सीट है, उसके द्वारा हम उसको रेफरेंस के अंदर हम उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो पैरामीटर्स आर द एग्जैक्ट डायमेंशन और फिक्स लिमिट होती है दैट क्लियरली डिफाइन द एरिया ऑफ इवैल्यूएशन. हमारे यहाँ पता लग जाता है कि किस एरिया के अंदर वीकनेस है, किस एरिया के अंदर स्ट्रांगनेस है. ठीक है, जब वीकनेस है हमें वहां पर उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, उस एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन अचीव द गुड रिजल्ट. थर्ड है सेकंड है आपका इन नर्सिंग ऑडिट. नर्सिंग ऑडिट के बारे में पहले बात की गई थी कि नर्सिंग ऑडिट एक प्रकार से ऑडिट होता है जिसमें नर्सिंग की क्वालिटी को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. So medical records chosen for the audit of the patient whose admission and discharge dates were within a specific period of time and whose age range and diagnosis were the similar. जो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका डायग्नोसिस सिमिलर होता है, साइन एंड सिम्टम्स आर सिमिलर होते हैं, बट उनका जो प्रोग्नोसिस जो रेट होता है, किसी का पुअर होता है और किसी का बेटर होता है, अच्छा होता है प्रोग्नोसिस रेट. तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फ्रॉम द beginning of the admission until the discharge of the patient we have to calculate by the nursing audit. से पता लग जाता है कि कितने समय से वो एडमिशन में है और कितने कब उसका डिस्चार्ज हुआ है. जो सेम पेशेंट है उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स हैं, सिमिलर उसकी डिजीज कंडीशन है, उसके बिहाफ पे पेशेंट कितना टाइम ले रहा है उस प्रोग्नोसिस को डेवलप करने। नेक्स्ट जो है इन नर्सिंग ऑडिट काइंड ऑफ डेटा कलेक्टेड शुड बी लिमिटेड related area of nursing activities resulting patient care outcome recorded on the patient chart। हम जो भी पेशेंट को असिस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो हमारा क्राइटेरिया होता है अस्कल्टेशन का, तो डिफरेंट क्राइटेरिया जो होते हैं वी आर यूजिंग इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम उनको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द केस शीट, जो भी हमने टेम्परेचर लिया है, पल्स लिया है, रेस्पिरेशन लिया है, ब्लड प्रेशर लिया है, यदि किसी पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस हमने चेक किया है, मेजर किया, हर चीज को मॉनिटर मेजर करते हैं, हार्ट बीट है, हर चीज को मेजर करते हैं। उस मेजर को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद इट डिपेंड्स ऑन दी जो डाटा हमने लिया है वो उस डायरेक्ट डेटा के अकॉर्डिंग हमने क्या नर्सिंग एक्टिविटीज की हैं, उसको नर्सिंग ऑडिट के अंदर कितना पेशेंट उस कंडीशन को इम्प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेशेंट को बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, जो हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं पेशेंट को, उससे पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेशेंट की क्वालिटी में इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो आपने जैसे ही उसको कोई भी प्रोसीजर दिया या कोई भी स्पंज बाथ दिया तो पेशेंट को टेम्परेचर कम हुआ है। जो भी प्रोसीजर आप करते हो उससे पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस नर्सिंग ऑडिट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दैट एवरी एक्टिविटी शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द patient chart. So data gathering involve the collection of the factual and objective based information with subject being evaluated। जो डेटा गैदर करते हैं, जो हमारे अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है या ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसके बिहाफ के अंदर जो डेटा गैदर करते हैं उससे सब्जेक्ट को हम एवेलुएट कर सकते हैं। We can evaluate the subject by data gathering in the form of factual or objective based information। Next is the evidence may be obtained through the observation, interview, review of the patient। एविडेंस हमें पता लगाते हैं, किसी भी चीज के लिए एविडेंस बहुत जरूरी है। विदाउट दीज एविडेंस वी कैन नॉट सी ऑफ द सच पर्सन क्वालिटी। उस पर्सन की क्वालिटी को हम असेस नहीं कर सकते कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। वी कैन आइडेंटिफाई द पर्सन्स क्वालिटी। सो क्वालिटी के लिए हमें एविडेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट एविडेंस वी कैन नॉट डेवलप द a quality assurance model। So here is one of the evidence is the observation, interview करना, review of the patient records होना, case assessment करना। then उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी लेबोरेटरी एनालिसिस होता है, टेस्टिंग होता है, रेडियोलॉजिक स्टडीज होती हैं, अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, फिजिकल असेसमेंट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री टेकिंग्स होती है। ये these are the criteria we are assessing the person and these are the some of the evidence we can identify the person is having the prognosis rate is become poor or good। then if evidence नहीं होते हैं तो विदाउट इन एविडेंस के आधार पर हम किसी भी पर्सन की क्वालिटी को हम जज नहीं कर सकते, ना उसको इवैल्यूएट कर सकते। हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इफ एविडेंस शोज दैट सर्टेन क्राइटेरिया आर नॉट मेट, यदि जो क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर मेट नहीं हो रहे हैं, मिलान नहीं कर रहे हैं, तो उन डेफिशिएंसीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और यदि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अटेंशन में डाल देते हैं, नीडिंग अटेंशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कोरोना के केसेस यदि उस एरिया में बढ़ रहे हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट की प्रोग्नोसिस रेट बहुत डाउन जा रही है, पुअर है और बहुत ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अटेंशन बहुत जरूरी है उस पार्ट का। कि कारण क्या है, ज्यादा हम रिस्क क्या है, उन रिस्क को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन के अंदर हम देखते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द एवेल्युएशन। क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, नॉर्मेटिव रेफरेंस एवेल्युएशन, आउटकम एवेल्युएशन, प्रोसेस एवेल्युएशन, प्रोडक्ट एवेल्युएशन, स्ट्रक्चर एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द एवेल्युएशन। So first is a criterion referenced evaluation। criterion referenced evaluation क्या होता है? क्राइटेरिया जो हम बनाते हैं किसी भी रेफरेंस के थ्रू, जैसे आप स्टैंडर्ड टूल यूज करते हो, किसी स्टैंडर्ड टूल के लिए आप स्टैंडर्डाइज टूल जब यूज करते हो तो यू आर मेकिंग योर ओन टूल। तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है किस तरह आपको उस पर्टिकुलर प्लेस के
सेटिंग जो होती है उस सेटिंग के हिसाब से आप क्या होता है अपने खुद के टूल्स डेवलप करते हो, स्टैंडर्डाइज टूल को मॉडिफाई करते हो। सो इन दैट क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसी के आधार पर हम किसी भी पर्सन को जज करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या परफॉर्मेंस को या नॉलेज को हम जो हमारे ऑलरेडी जो क्राइटेरिया बन गए हैं, जो स्टैंडर्ड बन गए हैं, उनके आधार पर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर, परफॉर्मेंस और नॉलेज को जज करते हैं, जिसको कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। देन सेकंड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव का मतलब होता है फीडबैक रिगार्डिंग द प्रोग्रेस बीइंग मेड। हम उसके बाद हमने जो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड जो बनाए उनके आधार पर हम क्लाइंट के बिहेवियर को या परफॉर्मेंस को या नॉलेज को असेस करते हैं, तो उस कंडीशन को क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। ऐसे ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो फीडबैक हम लेते हैं, किस तरह का वो फीडबैक का मतलब है कि वो उन चीजों को स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उनके आधार पर पर्सन उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, जो डाटा है हमारा इवैल्यूएटिव डाटा है, जो हमने प्रॉपर्ली इस डाटा को लिया है कंटिन्यूअस के अंदर, तो ये हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर बहुत इफेक्टिव होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देन नॉर्मेटिव रेफरेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है, नॉर्मेटिव रेफरेंस इवैल्यूएशन मींस स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल आर इंटरप्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म। जो नॉर्म है उनके आधार पर, या जो स्कोर बनाए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, जो स्कोर बनाए हैं उनके आधार पर हम किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल के स्कोर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो प्रोग्रेस होती है उससे हम किसी अनदर एरिया से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि भारत बंद का एक आह्वान हुआ था कि भारत बंद रहेगा, लॉकडाउन में रहेगा। लॉकडाउन से क्या होगा? दीज आर द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स व्हिच इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम उसको किस तरह ये हम उन्होंने जज किया है, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ गई है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनके पास क्या फीडबैक जा रहा है, उस फीडबैक को डिपेंड करता है फॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉर्म, कि आपको घर के अंदर रहना है, वो इंटरप्रेट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो आपको देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं कि किस एरिया में लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है और किस एरिया में लॉकडाउन को अच्छी तरह से वेल मेंटेन किया जा रहा है। तो ये नॉर्मेटिव रेफरेंस होता है। आउटकम इवैल्यूएशन का मतलब होता है उससे आउटकम कितना आ रहा है, जो लोग इस रूल्स को और उस नॉर्मल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने के बाद उनको किस तरह का आउटकम आ रहा है, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनका आउटकम किस तरह का आ रहा है, वो आउटकम इवैल्यूएशन होता है। प्रोसेस इवैल्यूएशन के लिए आपके पास सभी फैसिलिटी मौजूद है। ऑल फैसिलिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड टू यू सो दैट उस कंडीशन में आप कितना उस प्रोसेस को डेवलप करो सो दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्ली। देन प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, आप उसको इवैल्यूएट कर, उस प्रोडक्ट को आप एक बार चेक कर रहे हो, चेक करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस को देख रहे हो, क्योंकि नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर, उसकी इवैल्यूएट कर रहे हो, उसको इसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन कर रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है। स्ट्रक्चर का मतलब है जो स्ट्रक्चर के अंदर का आपका मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है, जो भी स्ट्रक्चर है, आप जिस घर में रहते हो वो एक स्ट्रक्चर है जो आपको एक क्या आइसोलेशन एनवायरनमेंट डेवलप कर रहा है। ठीक है, आपकी इफेक्टिवनेस को चेक कर रहा है कि आप प्रॉपर्ली सेफ हो या अनसेफ हो, दैट इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कई बार आप देखो गरीब लोगों के यहाँ झोपड़पट्टी हैं, लोग बाग भीड़ भाड़, एक ही घर छोटे से कमरे में 20-20 10-10 लोग रहते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर एवेल्युएशन को मेंटेन नहीं किया जाता, स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया जाता, उस कंडीशन में क्या होता है, बीमारियां ज्यादा फैलती। हमको प्रॉपर्ली आइसोलेट रहना है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना रखना है, तो ये स्ट्रक्चर एवेल्युएशन होता है। विदाउट दिस वी कैन नॉट डेवलप द एवेल्युएशन। So summative evaluation क्या होता है? It involves the gather or evaluative data at the end of the learning experience. जो हमने कुछ सीखा है, whatever knowledge we are gaining from the any topic or any learning teaching atmosphere or any learning atmosphere, we have to evaluate ourselves. जो अपने आप को evaluate करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? जो हमसे इंफॉर्मेशन को ली गई,
जैसे कि आज मैं कोई टॉपिक लेता हूँ, आपका टॉपिक लेने के बाद कोई टेस्ट लेता हूँ, उस टेस्ट के आधार पर आपको इवेलुएट करता हूँ, ठीक है, उसके अंदर कि आपने उस टॉपिक में कितना सीखा है, दैट इज नोन एज समेटिव इवेल्युएशन। बाय राइटिंग द असाइनमेंट, बाय टेकिंग द एग्जाम, बाय टेकिंग द पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ द जो आपको उस सब्जेक्ट से सीखा है, दैट इज अ summative evaluation. So there are some of the management principle in the evaluation. It should be in the next class. So now I want to stop here for the topic, and it will be evaluated that the topics are fully covered, not fully covered. That is the remaining topics, and it should be in the next class. So thank you and cooperating in the class. Thank you.